Okay, ready? So today we will learn about the spectrum, not the electromagnetic spectrum, something else, some new information for you, and after that there would be Bohr model. Most of the question in your competitive exam you will get from the this spectrum thing and from the Bohr model. Okay? So right now try to solve this question based on photoelectric effect. Okay? Question is, if lambda naught and lambda be the threshold wavelength and the wavelength of incident light. ठीक है? This is from the wavelength of incident light and not का मतलब you know this is threshold wavelength. Okay, is given. Find the speed of photoelectrons. What you have to find? Speed of photoelectrons. ठीक है? Basically it is a very small derivation. If you remember the formula, you can find the speed of electron. कर सकते हैं? Try कीजिए. What is the formula? साक्षी याद है आपको? इसका photoelectric effect में क्या formula use करते हैं? देखिए क्या है? Arthur, tell me the formula. Yes. आप बताओ. Photoelectric effect का formula. E is equal to. Yes. E is equal to E naught plus K. है ना? तो replace कीजिए. What is the E? E is the energy of photon of incident light. The light which are coming to the metal surface. So we can replace it by SC over lambda. हाँ, find out बोल सकते हैं, right? And here this is the work function of the metal. So we can write like this. What can I write at the place of K? Formula क्या है K का? Half mv square. So can I write like this? Half mv square. So can you find the value of V? इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं. सिंपल सा आपको एक डेरिवेशन क्या? सिर्फ रीअरेंजमेंट. आई शुड से इट इज रीअरेंजमेंट. बताइए क्या आंसर आएगा? क्या हुआ? Are you getting it? What to do? Take SC common. Write it. Where is the SC? We cannot cancel it out. No. How can you remove SC from here? No. Yes. Yes. Correct. Okay. Done. वैल्यूज क्यों रखी? जरूरत ही नहीं वैल्यूज रखने की. आपको एक सिंपल सा नहीं. हाँ. इसकी भी जरूरत नहीं थी ना बेटा. नहीं है. हाँ, एससी को एससी ही रखिए. हाँ, ऐसे करो. अब देखो क्या आएगा. और आगे सॉल्व करो इसको. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी. हाँ जी. डू नॉट पुट द वैल्यूज ऑफ एच एंड सी. आपको सिंपल बस वी का फॉर्मूला एक डिराइव करना है. वैल्यूज मत रखिए. ठीक है. साक्षी वैल्यूज हटाइए उसमें से फिर करो. हाँ जी.
सा गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई, देखो। नहीं बेटा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नीचे आएगा ये, आप थोड़ा करेक्ट करो। ओके, मैं बता रही हूँ, बोर्ड पे बता रही हूँ। हाँ, मैं बता रही हूँ। देखिए, एक गड़बड़ आप लोगों ने क्या किया, आपने वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इन दिस सिचुएशन यू कैन टेक एस सी कॉमन, सो इट वुड बी 1 by लैम्डा माइनस 1 by लैम्डा नॉट। फाइन, अब आप v का वैल्यू कर दीजिए, v स्क्वायर क्या हो गया, 2sc अपॉन m, ठीक है, क्या हुआ v, 2sc अपॉन m, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, तो v क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट। बस इतना काम करना है आपको, दिस इज द वैल्यू, ठीक है, 2hc अपॉन m, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, समझ में आया? एक और न्यूमेरिकल जस्ट फॉर रिवीजन, ओके, देन वी विल स्टार्ट another portion. Okay, this is in my book question number 69 from NRC. NRC चेक कीजिए, मेरी बुक के हिसाब से अराउंड 60 से आपका 75 तक मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चेक इन योर बुक्स एंड डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपके मॉड्यूल के और यहाँ के क्वेश्चन काफी कुछ सेम है, तो प्रैक्टिस करनी है। ओके, so question number 69, they gave you electromagnetic radiation lambda is equal to 310 angstrom। lambda का मतलब किसकी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, नॉट आया तो वेवलेंथ रिलेटेड टू मेटल, ओके, is subjected to a metal sheet having work function. Now they gave you work function phi naught which is 12.8 electron volt. ठीक है, what will be the velocity of photoelectrons? What will be the velocity of photoelectrons having maximum kinetic energy? चलिए बताइए, having maximum kinetic energy, velocity निकालनी है। For calculation of velocity, first you need to find the energy of incident radiation. ठीक है ना? What is the formula? E is equal to phi naught plus K. So first you have to find this value of E. क्या आपने क्या निकाला बेटा? 9.1 into 10 to the power minus 31। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास। इज इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू जूल। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू जूल? व्हाट डिड यू गेट फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी? क्या वैल्यू मिला आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बोलिए कितना? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू जूल इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच जूल, और देन v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका
2 into 27.2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 over क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1, तो आप 9.0 कर लीजिए फॉर इजी कैलकुलेशन, into 10 to the power minus 31, और जो भी वैल्यू आएगी देन यू हैव टू टेक रूट। ठीक है, अंडर रूट लेना है तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड कीजिए। Yes, 3 point something into 10 to the power 6 meter per second। ठीक है, आपको जो यहाँ पे कैलकुलेशन इनकम्प्लीट रहता है, घर जाके उसको कंप्लीट करना मेक श्योर है ना। ऐसा नहीं कि जो क्लास में यहाँ आप नहीं कर पाए हैं उसको घर पे जाके करिए, एक बार घर जाके नोट्स पढ़ने जरूरी हैं। आपने क्या सीखा, फाइनल आंसर शुड बी 3 point something into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ये 3 point something आएगा। ठीक है, तो मैंने भी 3.0 लिखा है बेटा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया था, उसमें कोई कंफ्यूजन? This is the graph related to photoelectric effect। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया था, इट इज नथिंग, इट इज द वोल्टेज which is used to stop the movement of electron। ठीक है, तो ये आप ये ग्राफ आपने प्लॉट किया था कल काइनेटिक, हाँ 2 किए थे ना। ओके ओके, 2 बाकी भी करा रही हूँ आपको। ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने उतना अच्छा ड्रॉ नहीं किया था, तो मैंने कल थोड़ा सा ये काम किया आप लोगों के लिए, कुछ पिक्स सेव किए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। दिस इज द लाइट ऑफ, है ना, this is the metal plate and electrons are reaching to the detector। okay, can you tell me what should be the polarity of this detector? polarity का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट व्हेन यू अप्लाई द स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोलैरिटी इज चेंज, तब आप क्या लगाते हैं यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? तब आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स वी कैन स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। ठीक, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम व्हाट, राइट टू लेफ्ट। सो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? अपोजिट रहेगा ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट शुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन, ये करंट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आपका बैटरी और ये सब वैक्यूम चैम्बर, डायग्राम समझ में आया? हु परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट यस्टरडे, आई टोल्ड यू, हर्ट्ज ने किया था बेटा ये। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ व्हाट, सोलर सिस्टम, सोलर पैनल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, ये जो मेटल आपने लगाया है, मेटल प्लेट, ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विच इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। प्रोबेबली आई हैव डिस्कस्ड इन द समर क्लासेस। फाउंडेशन कोर्स में किया था, कुछ याद है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताइए क्या है आप? यस, याद नहीं है? कुछ याद है थोड़ा बहुत?
Yes. Minimum energy required to remove an electron from a metal. Very good. Minimum energy required to remove an electron from the atom. ठीक है, तो हमारी प्रेफरेंस क्या रहेगी, कैसा मेटल लेंगे जो देर में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा। जो क्या करेगा, जल्दी लूज करेगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मेटल्स आर रिक्वायर्ड विच आर ऑफरिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझे आप, मिनिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ इफ आई एम राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, क्या थे ग्रुप 1? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। आपसे पूछा जाए विच इज द सुटेबल मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल? When you are moving down the group, ionization potential decreases. तो क्या है आपका आंसर? सीजियम। ठीक है, सीजियम क्या है, जैसे ही उसके ऊपर एनर्जी आएगी इमीडिएटली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मेटल्स विच ऑफर्स मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे आर यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल, है ना। सुटेबल मेटल कौन सा है जो क्या ऑफर कर रहा है, मिनिमम, क्या शो कर रहा है, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हाई वाला लगा देंगे तो अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो लूज ही नहीं करेगा तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। मेटल कैसा होना चाहिए, विच आर ऑफरिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आइए, दीज आर द ग्राफ्स। ठीक है, ये है आपका एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो बेटा पार्ट है ये क्या ऑफर कर रहा है, दिस देखो आपका ही ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। दिस इज एन नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्सेस, नो सॉरी माय बैड, ये एन ई है बेटा, इन्होंने प्रॉपर्ली लिखा नहीं है। दिस इज एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंटेंसिटी। क्लियर रहेगा क्या होगा यहाँ पर, जितना आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, उतना ही आपका आई इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कल हमने डिस्कस किया था। दिस इज एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाला, आपको ये फॉर्मूला आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। E इज इक्वल टू एच म्यू, इट इज द सेम थिंग। अगर यहाँ पर वेवलेंथ होता तो ये ग्राफ आपका डाउन हो जाता। अगर मैं आपसे बात करूं E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, ओके, लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ। तो क्या होगा, दिस इज E एंड दिस इज लेमडा, ये नेचर आएगा आपका लाइक दिस। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। आप देखो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सीजियम सबसे पहले, यानी सीजियम इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन वेरी क्विकली। व्हाई, अभी मैंने क्या बोला है ना। सेकेंड नंबर क्या उसने दिया आपको, जिंक। थर्ड नंबर उसने क्या दिया है, निकल। यानी सीजियम के केस में आपका लो फ्रीक्वेंसी का जो लाइट है दैट विल वर्क। देखो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो सीजियम रिक्वायर्स लाइट ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू निकल। इसका मतलब क्या हुआ, सीजियम इज गिविंग यू लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आपका यहाँ पर जो ग्राफ मिसिंग है आप उसको नोट करिए। ठीक, और कोई डाउट आप लोगों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से फैक्टर जरूर याद रखिए। ठीक है,
एक ही आपका फॉर्मूला है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स वो सेम ही रहेंगे क्या, इवन इफ उनके आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग number of electrons could be same सेम रहेंगे in case of डिफरेंट मेटल्स जिनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है ज्यादा है? नहीं नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपका लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मेटल के ऊपर नहीं कर रहे हैं, नहीं है ना। मेटल का क्या चीज फैक्टर है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, एक ग्राफ और आप लोग ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ वन मोर ग्राफ। Here is the photoelectric current. At this axis, photoelectric current. ठीक है? And here is the stopping potential V naught. ठीक है? ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आते हैं। नेगेटिव V naught, नेगेटिव साइड, क्योंकि you need to give negative polarity to the detector to stop the electrons. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, okay, and here is the potential. This is normal potential and V naught is giving you what, stopping potential. ठीक है, okay, this is the current. ठीक है, okay, this is I1, this is I2 and this is I3. ठीक है, this is the variation of photoelectric current versus voltage for different intensities. समझे आप, ये थोड़ा सा अलग ग्राफ है। किसके बीच में लिया आपने, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने शायद करंट बोला था, बट ये क्या है, आपका इंटेंसिटी है। क्या है ये, इंटेंसिटी। नहीं, किस केस में इंटेंसिटी आपको हाई मिल रही है, I1। तो यानी क्या हो रहा है, आपने कल ही पढ़ा था कि करंट और इंटेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दिस केस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज हाई, तो इंटेंसिटी इज हाई, करेक्ट। इन दिस केस करंट इज लोअर, इंटेंसिटी इज लो। अदर वे राउंड आप कर सकते हैं। यस, V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, ये नेगेटिव रहते हैं बेटा, इसलिए यहाँ पर इसने इसको इस कोऑर्डिनेट में दिखाया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाँ जी, आइए। यस, metals which offer minimum ionization potential is used for photoelectric cell. ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालेंगे स्पेक्ट्रम। ओके, किसके बारे में बात करेंगे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, वापस आएंगे इधर, पहले हम आते हैं नोट्स पे।
Okay. Atomic spectra or spectrum. See, how did you get the atomic spectra? So write few lines. Atomic spectra generates due to atomic spectra generates due to interaction of matter and light. Due to interaction of matter and light. ठीक है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड लाइट. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है, वन इज yes, one is absorption spectrum and the another one is emission spectrum. ठीक है, one is the absorption, another one is emission. Okay, and what is the significance of atomic spectra? With the help of this atomic spectra you can identify the elements. It is just like DNA fingerprinting. You know about that? DNA सबका कैसा है? Novel है. In the same manner, in case of atoms or molecules, atomic spectra is novel. Right? अगर आपको जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की वैल्यू मिल रही है दैट इज वेरी स्पेसिफिक. सोडियम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ सोडियम ही शो करेगा. यू कैन नॉट फाइंड द सेम थिंग विद एनी अदर एलिमेंट्स. ठीक है, तो आप इसका एक सिग्निफिकेंस ये नोट डाउन कीजिए. इट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हो सकता है इन फ्यूचर आप लोग रिसर्च के फील्ड में परस्यू करें, कुछ नया एलिमेंट डिस्कवर करें, तो आपको ये सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, है ना. उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेना पड़ेगा. पता चला मैच कर गया तो इसका मतलब पहले से बना हुआ है. राइट? ओके, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले ये समझेंगे. आई गेस ऊपर थी. Where is atomic? 1 minute. अरे गायब हो गई इमेज. कल मैंने सेव करी थी. ये समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज दिस? क्या ये? हाँ, ये नहीं देखा आप लोगों ने कभी? दिस इज रूम हीटर. रूम हीटर है ये. पुणे और महाराष्ट्र में ऐसा क्लाइमेट नहीं है, बट अगर आप नॉर्थ को बिलोंग करते हैं, कभी विंटर्स में दिसंबर में कभी दिल्ली साइड जाइए तो जरूरत पड़ती है इसकी, है ना. दिल्ली विंटर में. हाँ, दिस इज रूम हीटर. तो ये आपको वो जो मैं कल कलर के बारे में बता रही थी ना, उस ये वो चीज थी. अरे आइए, मैंने इमेज डाउनलोड की थी समां, वो कुछ तो इशू हुआ है. अब आप देखिएगा इधर. ओके, ये में जाएगी. देखिए
हो गया भाई, ब्रेक हो गया बातों का, आप समझिए क्या हो रहा है ना। अभी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, कौन से वाला पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। एंड वी दैट स्पेक्ट्रम इज सपोर्टिंग वेव नेचर ऑफ द लाइट, है ना। और हमने क्या बोला था? दैट इज कॉन्टिन्यूअस। तब भी मैंने आपको बोला था कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि देयर इज नो बाउंड्री लाइन कि दिस इज द यूवी रीजन, वहां पे क्या है? रेंज। आप लोगों ने प्रिज्म वाला स्पेक्ट्रम देखा है, या आप लोगों ने डीवीडी सीडी के पीछे कई बार देखोगे कलर मिक्स, ये भी नहीं देखा। और तरीका बताती हूँ, डिटर्जेंट पाउडर सब घर में यूज करते हैं, उसको पानी में घोल दीजिए एंड कीप इट इन द सनलाइट, यू विल सी कलर्स। जो बबल्स आते हैं उसमें भी कलर्स मिलते हैं। देखे सबने देखे वो कलर्स? दैट इज स्पेक्ट्रम। कैसे है वो? कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि यहाँ तक ग्रीन है उसके बाद ये शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता, सब मर्ज, है ना। तो ये जो सीन है आपका, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। दिस इज द लाइट। चलो अभी मैं सिर्फ आपसे बात करूंगी किसकी? विबग्योर की। विबग्योर में यू नो देयर आर 7 कलर्स, है ना। अब थोड़ा सा पहले एक वियर्ड सा एग्जांपल समझो। आप अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदने गए, शर्ट खरीदने गए, और वो शॉपकीपर के पास 7 कलर्स विबग्योर के शर्ट हैं। आप गए, उसने आपको 7 कलर्स दिखा दिए, ठीक है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। 7 कलर्स, आपने उसमें से 2 या 3 कलर्स पिक किए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अपने घर आ गए। आपके बाद आपका फ्रेंड गया वहां पे सेम शॉप पे शर्ट खरीदने, उसको कौन से कलर्स मिलेंगे? 3 तो चले गए, रिमेनिंग 4 मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो कलर जहां पे थे वहां पे तो नहीं है, वहां पे एब्सेंट हो गए। कुछ ऐसी ही कहानी है इस वाले स्पेक्ट्रम को देखिए, एब्जॉर्प्शन को। यहां से आपका फ्रेंड ये वाली शर्ट ले गया, क्या बचा वहां पे? उसके प्लेस पे क्या मिल रहा है? ब्लैक लाइन। समझिएगा बात को। शॉपकीपर सिर्फ आपको वही दिखाएगा जो उसके पास रिमेनिंग है, जो अवेलेबल है, क्योंकि उसमें से चलो कलर चूज करो, कौन से लेगा? यहाँ से देखो, एक पर्पल और एक ब्लू, 2 कलर लेके आपके फ्रेंड घर चले गए, आपको उसके प्लेस पे वहां क्या मिल रहा है? ब्लैक लाइंस मिल रही है। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आप घर आए तो आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि हम ये वाली शर्ट लेके आए। पेरेंट्स को कौन सी दिखाओगे? जो आप कलर चूज करके लाए हो। विबग्योर तो नहीं लाए थे, आप 2 कलर चूज किए थे, वो घर आके दिखा रहे हो ये हम ये शर्ट लेके आए। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको मैं मर्ज कर दूं तो यू विल गेट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कुछ समझ में आया? हाँ, मैं एक चीज और लाई थी आप लोगों के लिए, अगर आई डोंट नो शायद घर पे ही रह गया। ओके, समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर आप कंबाइन करते हैं, यू विल गेट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन और ये बात कहां से आई? देखिए क्या हो रहा है। देखिए, सपोज दिस इज द व्हाइट लाइट। क्या है ये? व्हाइट लाइट, ठीक है। वी आर पासिंग थ्रू द हाइड्रोजन गैस। ये व्हाइट लाइट हम क्या कर रहे हैं? वी आर पासिंग इट थ्रू द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्बिंग फ्यू फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम हियर। अब आप जो शर्ट खरीदने गए थे, आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन गए, है ना। आप व्हाइट लाइट से यू आर एब्जॉर्बिंग फ्यू फ्रीक्वेंसीज। क्या हुई? बहुत बातचीत हो रही है, क्या हुआ? बाद में कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपके कलर कौन से थे? अगर मैं सिर्फ आपसे व्हाइट लाइट की बात करूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्बिंग फ्यू फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो बाहर जो लाइट आएगी, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, वी आई, ठीक है, ब्लू गायब हो गया और आपका क्या गायब हो गया? येलो गायब हो गया, ठीक है। उसने कौन सा एब्जॉर्ब किया? ब्लू एंड येलो। तो ये जो लाइट आपको बाहर मिलेगी, ठीक है, और इसके बाद आप इसको क्या करेंगे? इसका स्पेक्ट्रम लेंगे ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लेने वाले हैं आप? स्पेक्ट्रम ऑन द
फोटोग्राफिक प्लेट। तो आपको कौन से कलर्स की यहाँ पर कौन से कलर दिखेंगे जो बाहर आ रहे हैं? यानी आपको यहाँ पे वॉयलेट दिख जाएगा, इंडिगो दिख जाएगा, ग्रीन दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, रेड दिखेगा। क्या एब्सेंट है यहाँ पे? ठीक है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा है ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी जो दो फ्रीक्वेंसीज हाइड्रोजन ने गेन की थी उसका क्या हुआ? हाइड्रोजन के पास, चलिए अगर मैं एक एटम की बात करूं तो इट इज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी सिचुएशन हो रही है भाई, लाइट से क्या आ रहे हैं? फोटोन आ रहे हैं, उससे कुछ फ्रीक्वेंसी के फोटोन एब्जॉर्ब करिए। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हाइड्रोजन का सैंपल है, नाउ इट इज एट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो नॉर्मल लेवल है ना, n इज इक्वल टू 1, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल। तो वो क्या है हमारा? एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो सैंपल था, इट इज गेटिंग एक्साइटेड आफ्टर एब्जॉर्बिंग ब्लू एंड येलो लाइट। आप कोई भी यहाँ पर सैंपल लेंगे वो किस फॉर्म में जाएगा? एक्साइटेड फॉर्म में जाएगा। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड दे आर जंपिंग टू द हायर लेवल। इतना तो समझ में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शेल से, राइट? बहुत पे अभी आएंगे आगे। एनीवे, एक्साइटेड सैंपल किसी भी एटम का वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। इट हैज टू कम टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल ही स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इट हैज टू कम बैक टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे आने का मतलब क्या है? जितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करी थी उतना ही एमिट करेगा, उतना ही क्या करेगा? एमिट करेगा। यानी आप घर आके मम्मी को दिखा रहे हो तो जो वहां से पिक करके लाए हो वही दिखाओगे ना मम्मी को। वही है, हाइड्रोजन भी अपनी मॉम को दिखा रहा है कि मैं ये लाइट की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करी है। तो क्या होगा, अब जो लाइट आ रही है उसका फिर से हम स्पेक्ट्रम लेंगे। तो यहाँ पे कौन से कलर की लाइट मिलेगी आपको? एक आपको क्या मिलेगा? ब्लू, और एक क्या मिलेगा आपको? येलो। तो दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। यहां तक बात समझ में आ रही है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या है आपका? एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आप एक दो डिफरेंसेस नोट डाउन कीजिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। लिखिए, फर्स्ट क्या लिखा आपने? डिफरेंस कैसे लिखेंगे? ड्रॉ ए लाइन। इधर क्या लिख रहे हैं आप? चलो मैंने एमिशन लिख दिया, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इधर? एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, किससे मिल रहा है आपको एमिशन स्पेक्ट्रम? एक्साइटेड सैंपल से या नॉर्मल सैंपल से? एक्साइटेड सैंपल से, है ना। तो एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय emission spectrum is obtained by radiations emitted from excited sample, emitted from excited sample। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दो ही है। सेकेंड लिखिए, it has bright colored lines, it has bright colored lines separated by dark space, separated by dark space, ये आप लिख सकते हैं डार्क बैंड्स। ठीक है, देखो जैसे ये है आपका, ओके, ये एक आपको लाइन मिल रही है, दूसरा उसने चलो ब्लू एब्जॉर्ब किया, ये देखो, है ना। आप दो कलर के शर्ट पिक करके लाए थे, येलो और ब्लू, तो आप घर आके वही दिखाओगे, बाकी स्पेस में क्या है? कुछ नहीं है। तो दिस इज द डार्क बैंड्स, यही आपने लिखा है,
एमिशन स्पेक्ट्रम में यू आर गेटिंग ब्राइट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, डार्क बैंड्स या डार्क स्पेस. गॉट इट? ठीक है. नाउ कम टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. कैसे मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटेड लाइट from the sample, obtained by the transmitted light obtained from the sample. ठीक है, क्लियर है एब्जॉर्प्शन. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैज डार्क लाइंस in an continuous spectrum. It has dark lines in an continuous spectrum. आप ये एज्यूम कीजिए कि ये पूरा क्या है आपका वेव क्योर. ठीक है, सारे कलर्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो वहां पे कैसा है, गायब है वहां से. राइट. तो आपको जो येलो वाला प्लेस था, येलो के प्लेस पे क्या होगा, एक आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी. ये डायग्राम ठीक नहीं है, इधर आइए. ये देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यू आर गेटिंग ब्लैक लाइंस सेपरेटेड बाय कलर्ड बैंड्स, और एमिशन में क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग ब्राइट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस या डार्क बैंड. समझ में आ रही है? मतलब ये इसी प्लेस पे थी. अगर आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो यू विल गेट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्पेक्ट्रम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. हेडिंग डालिए, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. हाँ, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको लाइंस मिल रही है ना बेटा, दैट्स व्हाई इट इज लाइन स्पेक्ट्रम. चलिए भाई, अब मजेदार चीज आ रही है आपके पास. एलन वाले भी ये पिक्चर दिखाते हैं आपको, है. चलो ठीक है, देखिए आप देखो, थोड़ी सी बात समझिएगा. एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताइए. बोलिए भाई, क्या समझ में आया? आदित्य बताएंगे, आदित्य बताएंगे. यस, एमिशन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझे? एक्साइटेड सैंपल से जो लाइट आ रही है उससे आपने क्या किया, उसका स्पेक्ट्रम दिया है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम. और उसमें आपको क्या मिलने वाला है, लाइंस. लाइंस कौन सी लाइंस? ब्राइट लाइंस तो है. व्हाट इज द ब्राइट लाइंस? किसकी है वो? द फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब बाय द सैंपल. जो सैंपल ने एब्जॉर्ब किया था उसकी लाइट. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. हमने हाइड्रोजन सैंपल को एक्साइट कराया और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हायर लेवल पे. ठीक है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन एज्यूम कीजिए, और आप कहाँ हैं? जस्ट कॉन्सेप्ट के स्टेयर केस. ठीक है, आपको नीचे जाना है, जंप करके हाई से नीचे जाना है. तो कुछ नॉटी बच्चे होते हैं, वो 2-2 स्टेयर 3-3 स्टेयर एक साथ जंप करते हैं. होता है. एक तो नॉर्मली आप 1 by 1 चल रहे हैं, कुछ ऐसे चढ़ते भी ऐसे ही 2-2 3-3 एक साथ, है ना. तो ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी उसी सिचुएशन में है, उसकी मनमर्जी है. या तो वो सपोज इफ इट इज प्रेजेंट एज 5th लेवल से फॉर एग्जांपल, और उसको कहाँ आना है? 1 पे आना है. पॉसिबिलिटी नंबर 1, 5th से डायरेक्ट जंप 1 पे.
ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, फिफ्थ से 2 पे, फिफ्थ से 3 पे, फिफ्थ से 4 पे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, फिफ्थ से पहले 4 पे आ गए, फिर 4 से 1, 4 से 2, समझ में आ रही? देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज। एक इलेक्ट्रॉन ने कितना सारा काम किया है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो नीचे आने में उसको कितने सारे आपको पॉसिबल लाइंस मिल रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? बहुत सारे तरीके हैं। वो 4 से आया फिर नीचे आया, फिर हो सकता है 5 से वो 3 पे आए, फिर 3 से 1 पे आए, या 5 से कहाँ आए, 2 पे आए, फिर 1 पे आए। देयर आर मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ जी, एक बार 5 से नीचे आ गया 3 में, तो कभी वापस 4 पे जा सकते नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको 4 पे जाने के लिए एनर्जी लगेगी। ऊपर कब जाएगा? जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन इट इज कमिंग डाउन इट हैज टू एमिट एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। देयर इज ए साइंटिस्ट नेम बामर, है ना, BALMER, राइट, MER। कुछ लोग एल को साइलेंट रखते हैं, हम बामर बोलते हैं, आप जो चाहे वो बुलाइए। तो उन्होंने ये थोड़ा सा स्टडी किया, ठीक है। देन ही गेव वन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? आप थोड़ा सा पहले एक बेसिक सी बात इस पे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना? ओके, स्टडी नोट्स पे आते हैं। देखिए क्या हो रहा है, दिस इज द लेवल 1, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक। दिस इज 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनेटिव, ऊपर क्या है ये आपका इन्फिनेटिव, कहीं भी तक भी हो सकता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर जाना है, जंप करना है, दिस इज N1, N2, N3, N4। ऊपर जाने के लिए इट हैज टू एब्जॉर्ब एनर्जी, से फॉर एग्जांपल 100 जूल, ठीक है। 100 जूल एनर्जी जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मिली और ये कहाँ जंप कर गया? 4 पे, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? एक्साइटेड लेवल। दिस इज ग्राउंड लेवल एंड दिस वन इज द एक्साइटेड लेवल। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इट विल स्टे ओनली अप टू 10 to the power -8 सेकेंड, then it has to come back. While coming back, इसने जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, कितना एब्जॉर्ब किया था? 100 जूल। इट हैज टू लूज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब वापस आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? वो या तो डायरेक्ट जंप कर जाए, दूसरा क्या है यहाँ करे फिर यहाँ से आए, तीसरा क्या है इधर आए फिर इसके बाद आए। ऐसे आपके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, या एक एक करके आए फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रॉन अभी आपका एक्साइटेड स्टेट में और उसको नीचे आना है, एंड दिस स्पेक्ट्रम इज ओनली अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो बामर ने क्या ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग दिस एमिशन स्पेक्ट्रम वी आर गेटिंग वेरियस लाइंस, ठीक है। लाइंस का मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, बहुत सारे आपको स्पेक्ट्रम में क्या मिल रहे हैं? लाइन मिल रहे हैं, एंड आई शुड से देयर आर सीरीज ऑफ, यानी ग्रुप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। नाउ कम टू दिस सीरीज, देखिएगा अब इसको ध्यान से देखो। दिस इज द level where the excited electron of the hydrogen atom is present and it has to come back, ठीक है। So here n is equal to 8, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे n इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है गेस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, लुक एट द पैटर्न, 8 से सीधे 1 पे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फिर वो कहाँ पे आया? 7 पे आया, 7 से 1 पे आया, या वो कहाँ पे आया? 5 से 1 पे आया, 4 से 1, 3 से 1, ये मतलब ऊपर के सारे लेवल से डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो ये जो येलो कलर है, यू आर गेटिंग अ सीरीज ऑफ लाइन, दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज, ठीक है। बामर ने सबसे पहले देखा था एंड उनको लगा कि सिर्फ कौन सी सीरीज अवेलेबल है? बामर सीरीज। लेकिन बाद में और स्टडी हुई तो इट वाज ऑब्जर्व कि देयर आर मैनी सीरीज। ये एक इलेक्ट्रॉन का खेल है, अभी सोचिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, क्या क्या कहानी चल रही है।
तो आपको समझ में आया, इफ इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू द लेवल 1, तो कौन सी सीरीज मिली आपको, लाइमन। दूसरी सीरीज पे आइए, इलेक्ट्रॉन ने अपना मूड चेंज किया, बोले नहीं मैं लेवल 2 पे जाऊंगा, 1 पे नहीं जाऊंगा, किस पे जाऊंगा, 2 पे जाऊंगा। अब वो सारी पॉसिबिलिटीज 8 से सीधे 2 पे, या फिर 7 से 2 पे, या 6 से 2 पे, लेकिन कहाँ के रुक गया, 2 पे। दिस इज गिविंग यू अनदर सीरीज बामर। थर्ड, फिर से मूड चेंज हो गया, कहाँ पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे। थर्ड पे इफ इलेक्ट्रॉन इज लैंडिंग ऑन थर्ड शेल देन इट इज पास्चन सीरीज। इफ इलेक्ट्रॉन इज लैंडिंग ऑन फोर्थ ब्रैकेट एंड लास्ट वन इज फोर्ड, और सबसे लास्ट में है हम्फ्री। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ने आपके लिए इतना सारा काम किया है। अब आप सोचो, इफ यू आर कंसीडरिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, और वो अगर यही प्रोसीजर फॉलो करें तो आपके लिए क्या मिलेगा, खिचड़ी। कहाँ से स्टडी करोगे, कौन कहाँ जंप कर रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। ठीक है, समझ में आया। दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मोटी मोटी बात क्या समझे, इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वी आर गेटिंग सीरीज ऑफ लाइंस। ठीक है, नाम एक बार मेरे साथ बोलेंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। मैंने भी ऐसे याद किया था जब मैं आपके बराबर की थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। ठीक है, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए एक हम सीरीज बनाएंगे, देन आई विल राइट वन फॉर्मूला, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द लाइमन सीरीज। फर्स्ट सीरीज क्या है, लाइमन। बट लाइमन से समझने से पहले आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखिए, 1/λ। ये किसका वेवलेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द लाइट एमिटेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। ऊपर से नीचे आने में क्या कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कि एमिट कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो वो कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट आर। अब इसका वैल्यू भी देखेंगे, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इफ आई एम पुटिंग r इज इक्वल टू 109677, ये मैंने याद कर रखा नंबर, 109667 677, देखा गड़बड़, 677, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1/λ को हम क्या बोलते थे, वेव नंबर। तो इट इज द वेव नंबर, आप कुछ भी ये नोट कर सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द सीरीज। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, n1 n2 इज द शेल नंबर। अभी जो n2 हायर हो गया ना, n1 ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे n1 इज स्मॉलर देन n2। हमेशा n1 आपको क्या रखना है, स्मॉल रखना है, n2 हाई। ठीक है, चलिए अब सीरीज देखते हैं। एक हम छोटा सा टेबल बनाएंगे। ओके, लाइमन सीरीज के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1। यहां पर हम लिखेंगे n1, यहां पर लिखेंगे n2 और यहां पर लिखेंगे रीजन। रीजन का मतलब स्पेक्ट्रम में कहां पर ये लाई करेगी लाइमन सीरीज। लाइमन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा था, 1, तो n1 का वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, और 2, ये n2 क्या हो जाएगा, अब ये 1 पे 2 से 3 से 4 से 5 से कहीं से भी 1 पे जंप कर सकता है। तो ठीक है, तो n2 में भी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, रेडिएशन ऑफ लाइमन लाइन फॉल्स इन यूवी रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कीजिए, यूवी, विजिबल, IR। तो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको रेडिएशन, यूवी रीजन में। ये आपका MCQ का क्वेश्चन हो सकता है बेटा। ठीक है, रेडिएशन ऑफ लाइमन सीरीज फॉल्स इन विच रीजन, 4 देंगे आपको, तो ध्यान रखिएगा यूवी रीजन। ठीक है,
यूवी क्यों है? लाइमन यानी इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ दैट एमिशन स्पेक्ट्रम, अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से 1 पे जंप कर रहा है तो जो लाइट एमिट करेगा वो यूवी लाइट एमिट करेगा। क्या हुआ बोलो, कहाँ कंफ्यूजन है? बट बाकी के क्यों नहीं रख सकते, सिर्फ यूवी? दिस इज द पॉसिबिलिटी। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको लाइमन सीरीज भी दे सकता है, बामर भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज ये है आपकी। सेकंड आइए, क्या है? बामर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी वो भी समझेंगे। बोलिए N1 का वैल्यू 2। अगर इलेक्ट्रॉन लैंड कर रहा है कहां पर? सेकेंड लेवल पे, तो यू विल गेट बामर सीरीज। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आएगा कि नहीं? 1 नहीं आएगा, है ना। तो नेक्स्ट हायर नंबर आएगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेडिएशन फॉल करते हैं विजिबल रीजन में। रेडिएशंस ऑफ नहीं, यूवी लाइमन है बेटा, बस यूवी लाइमन है, बामर विजिबल है एंड रिमेनिंग 3 एंड फर्दर आर इन IR। गॉट इट? बामर सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसमें क्या मिलेगा आपको? जो लाइट एमिट होगी यू विल सी कलर, एनी कलर फ्रॉम द वेवगाइड। गॉट इट? विजिबल रीजन 400 to 700 नैनोमीटर, उस बीच में कोई रेडिएशन मिलेगा तो कौन सी सीरीज मिलेगी आपको? बामर सीरीज। ठीक है। थर्ड है आपका पाश्चन। अब आपको आगे की कहानी समझ में आ गई। इट शुड बी 3। नेक्स्ट क्या होगा? 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका IR। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, इसको नोट कर लीजिए। 4, ये होगा 5, 6, 7 सो ऑन। ये भी किसमें आएगा? आपका IR। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुन, कुछ लोग इसको पी फुन बोलते हैं, फुन। ठीक है। N1, 5, 6, 7, 8 so on. This is again in IR. And the last one is Humphrey. Humphrey आप कर सकते हैं, आप लिख लीजिए उसको भी। Humphrey में क्या है? N1 कितना हो गया? 6। N2 कितना हो जाएगा? 7, 8 so on. ये भी किसमें आएगा आपका? IR। ठीक है। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रांजिशन, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N1 to N4 और ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N3 to N1, कुछ भी होगा। ठीक। दूसरा आपको क्या याद रखना है? इफ इट इज जंपिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, what will you get? Absorption spectrum or emission spectrum? Absorption. It is absorbing the energy. When excited electron is coming back from higher level to lower level, so you will get light of any region, right? Depending on the electron, वो कौन से level पे jump करना चाह रहा है। 1 पे आएगा तो Lyman, if electron is present at the excited level. ठीक है। So depending on the level on which it is landing, you will get series। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आप नोट डाउन कीजिए। पहले क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, फिर आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस बारे में। और मॉड्यूल है अभी सबके पास? ओके। Question number 45, page number 58. Question number 45, page number 58. The frequency of radiation emitted when the electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1 in an hydrogen atom will be। हाँ जी, तो फर्स्ट व्हाट कैन यू फाइंड? वेव नंबर या
वेवलेंथ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक बार आपको वेवलेंथ मिल गया, देन उसने क्या पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाउ, सी अपॉन लैम्डा। आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, लैम्डा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन बी। बी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, न्यू। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं बेटा, समझे आप। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, सी बाई न्यू। तो लैम्डा के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, इट विल बी न्यू बाई सी। आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? n1 का वैल्यू क्या रखने वाले हैं बेटा, बोलिए। 1। मैंने क्या बोला है, n1 हमेशा लोअर रहेगा, n2 हमेशा हायर रहेगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। आई एम कमिंग। Laws of motion. Laws of motion. हो गया। What is the answer? क्या समझ में आया भाई, क्या करना है सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? डिड यू कैलकुलेट? ओके, सी का वैल्यू I put it down there. डिड यू पुट द वैल्यू ऑफ सी? Yeah, 3 into 10 to the power 8. 8, बट वाई डाउन साइड, इट शुड बी इन द न्यूमरेटर ना, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ना बेटा, तो इट वुड बी यस। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिन लोगों का हो गया है दे कैन चेक क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करो। जिन लोगों का हो गया है पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 32। Arthur, did you get answer? हाँ, ओके, हो गया? नहीं आ रहा है? क्या हुआ? कौन सा करें? अच्छा 32 पे आ गए, पहले वाला पूछी थी वो हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन n इज हाइड्रोजन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनेटिव, तो n1 का वैल्यू कितना हुआ 1 और n2 कितना हो गया इन्फिनेटिव। तो क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ निकालो। 1 बाई इन्फिनिटी 0, ठीक है। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो कुछ नहीं करना है आपको, रिडबर्ग का ये रेसिप्रोकल ही होगा। हाँ भाई, आ गया आंसर? नहीं आया अभी? बहुत बड़ा जा रहा है। कैलकुलेशन तो है बेटा,
आ जाएगा आपका 3 आ गया ना, यू विल गेट करेक्ट आंसर। आंसर सी है। कौन सा? हाँ कर रहे थे हम, 45 कर रहे थे ना, ये है आंसर, सी है। एवरीवन इज डन विद द क्वेश्चन नंबर 45। उसमें किसी को प्रॉब्लम है? बोलिए भाई। साक्षी हो गया? कौन सा करें अभी? 45 करें, ओके। हाँ जी, यस, करेक्ट दिख रहा है? हाँ मैंने बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ जी, इन्फिनेटिव वुड बी 1 अपॉन इन्फिनेटिव, ठीक है, एंड दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, ओके। नहीं, n1 विल बी 1 बेटा, एंड n2 विल बी इन्फिनेटिव। हाँ भाई, डन। नेक्स्ट अभी कीजिएगा आप, पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रांजिशन, ठीक है। अभी कुछ पिक्चर क्लियर हुई, व्हाट इज हैपनिंग? इलेक्ट्रॉन वाज अवेलेबल एट द ग्राउंड लेवल, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इट मूव्स टू द हायर एनर्जी लेवल, then it comes back to the ground level by emitting radiations. So we can find the wavelength of the light absorbing by the electron as well as emitted by the electron. दोनों काम आप कर सकते हैं by using the same formula, ठीक है। अब इसमें जो questions आते हैं, ओके, एक चीज़ समझिएगा, E is equal to Hc upon lambda. Energy is inversely proportional to wavelength, ठीक है। When this is the nucleus, N1, N2, N3, N4, N5, ठीक है। क्या होता है? When you are moving up, energy decreases. When you are moving up, यानी N1, और अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, so which shell is present at higher energy level? नेगेटिव है ये मामला सब, अभी आगे समझ में आएगा। तो ऊपर की तरफ आप मूव करते हैं, एनर्जी क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो पूछेंगे आपसे लिमिटिंग लाइन, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? What is the wavelength of limiting line in Lyman series? What is the wavelength of limiting line in Balmer series or any other series? तो limiting line का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझिए, लास्ट लाइन। Limiting line का मतलब क्या हुआ? लास्ट लाइन, ओके। So in this case, whatever the value of n1, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, but n2 should be infinite। अभी आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसमें यही था। अगर कहीं पर आपको पूछा उसने लिमिटिंग लाइन, तो आपको तुरंत क्या करना है? पुट इन्फिनेटिव इन प्लेस ऑफ n2। कोई भी सीरीज है, n1 का वैल्यू 1 लाइमन के लिए है, 2 बामर के लिए है, n1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी लिमिटिंग लाइन कैन एग्जिस्ट इन एनी सीरीज। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? ओके। इसका मतलब क्या है? This line will have मेरे को चलिए, this line will have shortest, मैंने शायद पहले थोड़ा गड़बड़ एक की है, अभी बता रही हूँ आपको क्या गड़बड़ किया मैंने। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी कैसी रहेगी? हाई। मैंने इससे पहले थोड़ा गड़बड़ किया, ऊपर जाता है एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, है ना। उस अगर नोट किया तो उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और लिख लीजिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी मैक्सिमम,
समझ में आ रही बात? एनर्जी क्या रहेगी? मैक्सिमम। और व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ये भी मैक्सिमम रहेगी। भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलना है ना वेवलेंथ के। लिमिटिंग लाइन के लिए आप अगर देखो वो क्वेश्चन आपको 2-3 तरह से फ्रेम कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? दे विल नॉट यूज द वर्ड लॉन्गेस्ट लाइन और लास्ट लाइन। तब भी आप समझिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब व्हाट यू हैव टू डू, पुट इन्फिनिटी एट प्लेस ऑफ n2। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि शेल्स का कोई लिमिट नहीं है बेटा। नहीं, हाँ, तो इसलिए इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। तो फिर उसकी सबसे लास्ट लाइन तो ये लिमिटिंग लाइन। हाँ ठीक है, ये समझ में आया? एक तो पॉइंट है आपका ये। सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कैन यू गेस? इस केस में आपको क्या मिल रहा था? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? नहीं, n1 इन्फिनिटी कैसे होगा आरोही? नहीं होगा, n1 कैन नॉट बी इन्फिनिटी। शॉर्टेस्ट कैसे होगा सोचो? n1 का तो आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे। व्हाट अबाउट द n2? नेक्स्ट हायर लेवल, नेक्स्ट हायर लेवल। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 का तो जो भी वैल्यू है आपका, है ना, n2 क्या हो जाएगा? n1 + 1। गॉट इट? नेक्स्ट हायर लेवल 1 पे है तो 2 की बात करेंगे, 2 पर है तो 3 की बात करेंगे, 3 पर है तो 4 की बात करेंगे। तो ये जो आपका ट्रांजिशन है दैट दिस विल गिव यू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? एनर्जी क्या हो गई? कम। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम। ठीक है, लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ हमारा? एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? मिनिमम। डाउन साइड एरो का मतलब मिनिमम और अप साइड एरो का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा वेरिएशन, जितना आपने सीखा है दिस इज, हाँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर द स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो आपने पढ़ लिया, क्या है? हाइड्रोजन। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्पीशीज विच बिहेव्स लाइक हाइड्रोजन आयन। तो आपके 2-3 ही हैं। ठीक है, ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट आएगा बोहर मॉडल में। आज तो नहीं हो पाएगा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में भी आप यही करने वाले हैं। ठीक है, जैसे है आपका फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के बाद किसका नंबर आता है? हीलियम का आता है ना। तो हीलियम, सोचिएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद द हीलियम? 2। आपको 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज चाहिए तो कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा? 1। तो हीलियम आयन। ठीक है, सेकेंड बेरिलियम नहीं बेटा, हीलियम के बाद नेक्स्ट आता है लिथियम। लिथियम इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज टू लूज 2। आपको 1 इलेक्ट्रॉन वाला रिक्वायर्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये? 2। तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? ठीक है, नेक्स्ट फिर लिथियम के बाद क्या आता है? व्हाई नॉट? नोबल गैस है, बट नोबल गैसेस के भी कुछ रिएक्शंस होते हैं रेयर कंडीशंस में। आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था? किसका बम्बार्डमेंट हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है? इफ यू आर स्टडिंग ट्रांजिशन इन केस ऑफ दीज स्पीशीज या दीज आयंस, तो जो आपका फॉर्मूला था क्या था? 1/λ इज इक्वल टू 109,677 1/n1² - 1/n2²। यहाँ तक तो पढ़ाई था आपने। इसमें आप z² का मल्टीप्लाई करेंगे। z इज द क्या है? एटॉमिक।
ठीक है, Z क्या है यहाँ पे, ओके यहाँ तक समझ में आया। तो फिर आप इसको किसी भी एटम पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन, इफ इज टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन इन हीलियम आयन, तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी हीलियम की, क्या रखेंगे यहाँ पर, एक, ठीक है भाई, समझ में आया आपको। एक लास्ट फॉर्मूला और नोट डाउन करेंगे, हो गया। बहुत सारे प्लेसेस पे आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी, 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो इसके लिए इससे अच्छा है कि आप इसको कैसे यूज़ करें, इट इज़ इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम। इससे से थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, जो मेन नंबर्स हैं, है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करके आपकी फॉर इजी कैलकुलेशन एंड फास्ट कैलकुलेशन 1/r का वैल्यू ये, ठीक है। चलिए अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब जैसे आपने देखा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू द ग्राउंड लेवल एंड यू आर गेटिंग लाइन्स, few lines in the Lyman series, few in Balmer's or Paschen bracket form. So how to calculate total number of spectral lines, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करिए, बहुत आसान है। How to find, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, total number of spectral lines, ठीक है, which is equal to n2 minus n1, 2 मतलब हायर लेवल, 1 लोअर लेवल, क्लियर है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको if n2 is equal to 5 and n1 is equal to 1, try to find the total number of spectral lines. 10, कितना मिलेगा आपको, 10, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, समझ में आया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क हम लोग कब मिलने वाले हैं, अब फ्राइडे होगा बोर मॉडल, बट बिफोर दैट आप सारे ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेई वार्म अप में मोस्टली क्वेश्चन आपको बोहर मॉडल और ट्रांजिशन के ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं, लेकिन और भी हैं आपके, जैसे क्वेश्चन नंबर 26, 32, 33, 34, 37, ओके, 45, 41। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। बोहर का है तो उसको मत कीजिए, जेई वार्म अप, ठीक है। तो आप ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके आएंगे, जो नहीं आएगा वो हम करें, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। चेक पॉइंट 1 से भी आप क्वेश्चन अब कर सकते हैं, मोस्टली टॉपिक हमारे कवर हो गए, ठीक है। चेक पॉइंट 1, आप लोगों का कोई और डाउट है तो बताइए। हमारे जो अभी टेस्ट 2 होने वाला है वो वापस सब तो बंद ही है, किसी ने अच्छा नहीं किया था उसको, किसी ने अच्छा नहीं किया। नहीं अच्छे की बात नहीं है, इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। तो फिर चैप्टर 2 को करोगे, उसके बाद चलो कर तो लीजिए चैप्टर 2। अभी तो टेस्ट देने हैं, 12th तक बी रेडी, टेस्ट होने हैं स्कूल में भी और यहाँ भी, है ना, वो प्रैक्टिस के लिए बस, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय।
Yes.